Normalization and functional dependencies. This is your lecture 4, redundancy, anomalies, single valued functional dependency, trivial, non-trivial, and semi-non-trivial functional dependency. First, what is normalization? It is schema refinement, elimination or minimization of data redundancy, or we can say it is the process of decomposing the relations to eliminate the data redundancy. So what is the data redundancy? Duplicate copy of data stored in multiple locations. So here we have a table in which we have all the details of the students, all the information regarding the courses, and the students who are enrolled in some courses. So every information we have in one table. So if you notice here, we have repeated data, that is S1A. Here also we have repeated data S2B, and this is S2B. This C1C 5K is also repeating here. So this data is called redundant data. Few attributes of the relation may suffer from redundancy. ऐसा नहीं कि सारे attributes suffer होते हैं, but some attributes. So because of redundancy, we have three anomalies. One is update anomaly, deletion anomaly, and insertion anomaly. Anomaly is like a defect in table. So first we have update anomaly. Update all redundant copies of data which is too costly. Suppose you want to set the fees of the course C1 from 5,000 to 8,000. तो C1 की फीस कितनी आप सेट करना चाहते हैं? 5,000 to 8,000. Then in this case you have to set this value to 8,000. So look, see, here it looks easy because we have only a few tuples, but in reality we have a lot of tuples, like we may have 100 records or 1,000 tuples. Then that time it will be difficult to update in each row. It will be very costly. It will take more time. Now, deletion anomaly. So because of the deletion of some data, we may force to lose other useful data. Let's suppose student S2 is no longer registered for this course C3. Then in this case, you have to delete this row. If you delete this row, then we lose all the information regarding C3. That's why we can say that we are forced to lose other useful information. Now, insertion anomaly. Because of insertion of some data, we are forced to insert some other dummy data. So let's consider we want to insert a new course information, that is C4 Java 20K. So when you insert this entry into this table, then C4 Java 20K, then these two field will be saved with null. Here will be null and here will be null. But here is a problem. देखिए इस टेबल की कैंडिडेट की क्या होगी? इस टेबल की कैंडिडेट की है SID and CID. It means SID and CID together can differentiate all the tuples. अगर आप देखें यहाँ पे S1C, S1C plus, S2C, so इन सभी टपल्स की जो वैल्यूज है वो इन दो में बिल्कुल डिफरेंट है. So that's why, because SID is the part of the candidate key, we cannot put here null. So null cannot be given in this situation. So this will not be possible. That's why we have to give dummy data. So let's suppose आप यहाँ पे क्या दे देते हो? XX दे देते हैं, ठीक है. But dummy data creates incorrect results. Let's suppose you are counting total number of students in this table. Then database may include dummy data. So this is a defect. This is insertion anomaly. So what is the solution to avoid these anomalies? We have decomposition. Decomposition is the solution.
It is the process of elimination of redundancy. In this, we split the relation into two or more sub-relations. So this is your relation. It has so many anomalies, 3 anomalies it has. So we decompose it into two relation first. सी अभी आपका क्या क्या कॉमन डेटा रिपीट हो रहा था, एक तो ये वाला डेटा रिपीट हो रहा है और एक ये डेटा रिपीट हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, वी क्रिएट टू टेबल्स जिसमें एक में हम रखते हैं एस आई डी एस नेम और दूसरी में रखेंगे सी आई डी सी नेम एंड फी. बट यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक ऐसा इन दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, तभी तो ये दोनों टेबल रिलेट कर सकेंगी. तो इसलिए हम सी आई डी को एस आई डी के साथ रख देते हैं, इट विल बी ईजी. तो अभी हम इनको सेग्रीगेट करते हैं. सो लाइक अब देखिए आपके पास टू रिलेशन है, वन इज रिलेशन वन एंड अनदर वी हैव रिलेशन टू. इन दिस रिलेशन we have candidate key, that is your SID and CID, and in this we have CK CID. So CID is a single attribute which can differentiate all the tuples. So आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 3 एंट्रीज हैं. तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एनोमलीज रिमूव हुई हैं या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we see deletion anomaly. So if you want to delete any entry from here, then there will be no problem. Insertion आप easily कर सकते हैं. C4 Java 12K, there will be no issue. And next is updation. If you want to update the fees for course C1, then easily you can set here 12K or 20K. There will be no issue. Only one entry you have to update here. ओके, इन दिस टेबल में देखते हैं क्या सभी एनोमलीज रिड्यूस हो गई हैं या मतलब चली गई हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन की. सो इफ आई डिलीट, लेट्स सपोज इन दिस टेबल इफ आई डिलीट दिस रो S3, then deletion of this row will lose the entire information about C3. So there is a problem. Oh, okay. No, in this C3 की इंफॉर्मेशन तो आपके पास दूसरी टेबल में है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. यदि मैं C3 डिलीट करती हूँ, लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट the information of that student who is enrolled in C3, then I have to delete this row. अगर मैं ये रो डिलीट कर देती हूँ तो S3 का जो डेटा है वो चला जाएगा, S3 का यहाँ पे डेटा नहीं रहेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स वाई वी हैव डिलीशन अनोमली. नाउ वी हैव इंसर्शन अनोमली हियर. कैसे इंसर्ट, आप सपोज कुछ इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर. Okay, so let's suppose you are inserting the data of another student, that is S4, and इसका name क्या है यहाँ पे D. So he is not enrolled in any course. Then again you have to give it here null, but null आप नहीं दे सकते because CID is the part of the candidate key. Then you have to give it here some dummy data. So it will again create some problem. नाउ अपडेशन करने में भी वही प्रॉब्लम है. अभी भी देखिए वैल्यू रिपीट हो रही है. तो जब भी आप एस नेम को यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यू हैव टू अपडेट इन ऑल द रोज वेयर यू विल फाइंड S1. ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट रिलेशन 1 is still suffering from all the anomalies. So we have to decompose this table into other two relations. देखिए कैसे करेंगे आप. अभी यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ रही है तो इन दोनों को एक टेबल में रख देते हैं और SID और CID को एक अनदर टेबल में रख देते हैं. सो नाउ वी हैव टू रिलेशंस और इनमें कोई भी एनोमली नहीं है, कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा है. इसमें भी कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा है और इसमें भी कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा है. इसकी जो कैंडिडेट की है वो क्या होगी, SID, और इसकी जो कैंडिडेट की है वो क्या होगी, SID and CID both. Fine. Okay. So how to determine redundancy, मतलब redundancy किसके कारण अकर होती है, why.
सो रिडंडेंसी इज नॉट बिकॉज ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट. अभी हमने देखा है जब भी डेटा रिडंडेंट हुआ है तो वहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, तभी डेटा रिडंडेंट होता है. सो हेयर वी टेक सी आई डी, सी नेम, एस आई डी, एस नेम. तो सी आई डी, देखिए यहाँ पर सी आई डी क्या है, C1. जब सी आई डी का वैल्यू है C1 तो सी नेम कितना है, C. जब सी आई डी का वैल्यू है C1 तो नाम यहाँ पर क्या है, C. when CID's वैल्यू इज C1 देन क्या होना चाहिए, यहाँ पे C ही होना चाहिए. अगर यहाँ पे C2 है देन वी कैन नॉट से दैट X determines Y. So this is functional dependency. In this, like C1 determines the value of the C name. We can say CID determines the value of C name. So whenever the value of the CID repeats, the value of the C name will also be repeated. सेम ऐसे देखिए एस आई डी में S1 तो A है. Whenever is S1 we have S name A. So that's why we can say SID determines S name. The value of SID determines S name. So this is your functional dependency. इफ x इज नॉट सी के मतलब कैंडिडेट की, यदि आपकी x कैंडिडेट की नहीं है इट मीन्स इट कैन बी रिपीटेड. सो वेन एवर x रिपीट्स corresponding to x the value of y will be repeated. अब आप यहाँ पे देखिए जब जब S1 रिपीट होगा तब तब S नेम की भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. सो S1 और A एक पूरा सेट है. जब भी S1 आएगा तो एस नेम की वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी. जब भी C1 आएगा सी नेम की वैल्यू क्या होगी, सी ही होगी. तो वी कैन से कि एक्स एंड वाई सफर फ्रॉम रिडंडेंसी, क्योंकि ये कैंडिडेट की तो नहीं है. जब ये कैंडिडेट की नहीं है तो रिपीट भी हो सकती है, और जब ये रिपीट होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन वाई विल ऑल्सो बी रिपीटेड. सो दैट्स वाई वी विल हैव द रिडंडेंसी. सो अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वहाँ पर रिडंडेंसी भी है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. Now we have single valued functional dependency. Let R be the relational schema, X and Y be the attribute sets over R, T1 and T2 be any two tuples of R. So X determines Y exists in R if T1 dot X is equal to T2 dot X, then T1 dot Y is equal to T2 dot Y, but reverse may not be true. देखिए ये आपके पास एक रिलेशन है, इसके अंदर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करना है. तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे. सो देखते हैं कि एक्स डिटरमाइन वाई करता है या नहीं. तो एक्स का वैल्यू कितना है, ए बी एंड सी. ए की कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना है, 1. देख लीजिए सब जगह 1 है. बी का वैल्यू कितना है, 1. एंड सी का वैल्यू कितना है, 1. It means we can say x determines y because for some value of x we have only one value of y. So that's why x determines y. So we have this functional dependency in this relation. अब आप देखिए x determines z. क्या ये functional dependency यहाँ exist करती है. So a x का कितनी वैल्यूज है, a है, b और c, 3 वैल्यूज हैं. ए की कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या है, 1 एंड 2. बी का वैल्यू कितना है, 3. एंड सी का वैल्यू कितना है, 3. तो इट मीन्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव मल्टीपल वैल्यूज in Z. So that's why it is not functional dependency. X is not determining Z. ठीक है. अब इसके अंदर देखते हैं कि x क्या डिटरमाइन करता है y को. इसके अंदर करता है, देखिए ए का सिर्फ ए की वैल्यू है 1, बी का भी ए की वैल्यू है 1, सी का एक वैल्यू है 2. सो इट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ वाई. जब जब ए आएगा तब तक वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. इसमें देखते हैं कि एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को. सो एक इसके अंदर एक्स के अंदर कितनी वैल्यूज है, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू ए के साथ y की वैल्यू कितनी है, 1 और 2. इट मीन्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x वी हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y. सो इट इज नॉट योर फंक्शनल डिपेंडेंसी.
ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. सो व्हाट इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी? ये ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट यूजफुल, मतलब इन फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई यूज नहीं होता. वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है बट दीज आर नॉट यूजफुल. और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी भी रिलेशन में हमेशा एग्जिस्ट करती है. ठीक है. Let's suppose you have a relational schema that is R, A, B, C. So you have three attributes. तो यदि आपके पास इन एट्रीब्यूट्स का डेटा नहीं है तब भी आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. जैसे ए टेन टू ए तो हो गया, बी टेन टू बी, सी टेन टू सी, ए टेन टू ए, कि हम बी ले लेते हैं, दो एट्रीब्यूट से मिली हुई, ए बी टेन टू ए बी, या फिर ए बी टेन टू ए बी टेन टू बी. सो वी हैव सो मैनी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन. इसके लिए आपको डेटा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करती हैं. सो व्हेन यू हैव द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ x is the superset of y, then x tend to y is trivial. So they are saying if x is the superset of y, then x tend to y is trivial. ये आपकी ट्रिवियल डिपेंडेंसी होगी. फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसी है? ये ट्रिवियल है. यहाँ पे देखिए a is also the superset of this, ab is also the superset of a, or we can say ab is the superset of a. So we can say that AB tends to A. So this is your trivial functional dependency. Now we have non-trivial functional dependencies. These are useful dependencies. Useful. इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी डिकम्पोज करने में यूज़ की जाती है जब आप एक फंक्शन को डिकम्पोज करते हैं इन मोर देन टू रिलेशंस, देन वी यूज़ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसीज. इनको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज़ करके आप एक रिलेशन को डिकम्पोज कर सकते हैं. सो वही आर यहाँ पे रिलेशनल स्कीमा है. एक्स वाई आपके एट्रीब्यूट सेट्स हैं ओवर आर. सो इफ x इंटरसेक्ट y इज एम्प्टी, मतलब x और y में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, द एंड x टेंड टू y, देन x टेंड टू y इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. देखिए यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं b एंड c. सो एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है या तो b टेंड टू c या फिर c टेंड टू b. या तो B डिटरमाइन कर रहा है C को या C डिटरमाइन कर रहा है B को. ये दो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती हैं. तो अभी देखते हैं कि यह पॉसिबल है. तो B की वैल्यूज़ क्या क्या है? 1, 2 एंड 3. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं C में. 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 1 1. 2 की कितनी है? 2. और 3 की कितनी है? 2. So that's why we can say that for every value of B, we have only single value in C. That's why it is your functional dependency. This functional dependency exists in this relation and this is non-trivial functional dependency. अब ये functional dependency देखते हैं exist करती है या नहीं. तो C की कितनी values है? 1 and 2. दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 1 है और एक 2 है. 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए क्या है? 1. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए क्या है? 2 and 3. So here for a single value of C we have multiple values of B. That's why this is not a functional dependency for this relation. Okay, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. Now semi non-trivial functional dependency. So combination of both types of FDs is called semi non-trivial functional dependency, like this. In this if you notice A tend to A and A tend to C. यदि आप इसको यहाँ पे डिकम्पोज कर दो तो क्या आता है? A tend to A tend to C. So this is your trivial functional dependency and this is non-trivial functional dependency. So this functional dependency is the combination of both dependencies. Now this is an example
In this example, we need to find the non-trivial functional dependencies. जैसे एग्जाम में आपसे इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाता. एग्जाम में आपको कुछ एफडीज दे दी जाएंगी, उनमें से वो आपको बोलेंगे कि बताओ इस रिलेशन में कौन सी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है इनमें से. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव ए टेन टू बी, ए टेन टू सी, ए बी टेन टू सी, सी टेन टू ए. सो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है. सो सबसे पहले देखते हैं कि ए टेन टू बी एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो अभी आपको वो सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ए का वैल्यू लिखो ए वन एंड ए टू, देन ए वन के कॉरस्पॉन्ड वैल्यू लिखो बी वन, बी टू, फिर ए टू का वैल्यू लिखो बी वन. सो नाउ वी नो कि ओके, क्योंकि यहाँ पे ए वन के लिए दो वैल्यूज़ हैं, इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है. इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, आपको बहुत जल्दी देखना होगा. सो अभी आपको यहाँ पे डेटा दे दिया है तो आप डेटा को डायरेक्टली देखो और इसी से ही रिजल्ट फाइंड कर लो कि ए टेन टू बी है या नहीं है. देखिए ए वन है, ए वन के लिए यहाँ पे कितनी है, दो वैल्यूज़ हैं, तो सिंपली इट इज़ नॉट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब ए सी में देखिए ए वन के लिए कितनी वैल्यूज़ हैं, सी वन. Okay, now we have C2 also, so this is not a functional dependency. अब ए बी टेन टू सी, ए बी के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सी का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए. ए वन बी वन वी हैव सी वन. देखिए ए वन और बी वन के लिए वी हैव सी वन, ए वन बी वन के लिए अगेन वी हैव सी वन. गुड. ए वन बी टू के लिए वी हैव C2. गुड. ए टू बी वन के लिए भी हम क्या है हमारे पास C3. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी के, और उनके लिए वी हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू. सो एवरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी हैज़ अ सिंगल वैल्यू. सो दैट्स वाई वी कैन से येस दिस इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब सी और ए में देखते हैं. सी के लिए आप देखिए सी वन दो जगह है, सी वन के कॉरस्पॉन्ड ए का वैल्यू सेम है. ओके, सी टू के कॉरस्पॉन्ड वैल्यू है ये, सी थ्री के कॉरस्पॉन्ड वैल्यू ये, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो येस दिस इज़ योर फंक्शनल डिपेंडेंसी. सी और बी में देखना है सी टेन टू बी, सी टेन टू बी. सो सी की वैल्यू क्या है, सी वन के कॉरस्पॉन्ड बी का वैल्यू क्या है, बी वन. तो दैट्स वाई फॉर सी वन वी हैव ओनली बी वन, for C2 we have only B2, and for C3 we have only B1. That's why it is your functional dependency. अभी आपको समझ आ गया होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी रिलेशन में डेटा को देखकर कैसे फाइंड की जा सकती है. वेल आपको जब आप डेटा मतलब जब आप डेटा क्रिएट करते हैं, जब आप डेटा की टेबल क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, आप उस टाइम एफडीज़ को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई वहाँ पे किया जाता है. दैट्स वाई एफडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ये भी एक इंटीग्रिटी क्या है, कंस्ट्रेंट है, कि आपको याद रखना है. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.